Good morning, students. Welcome to St. Michael's Academy, e-learning class of SST Standard 3. Myself, Rahul Davis. Today, I will start with chapter 2, looking at the Earth. Earth. Earth is planet of life. हमें मालूम है कि अर्थ हमारा एक ग्रह है जिसपे जीवन है। अर्थ मेड ऑफ थ्री थिंग्स: वाटर, लैंड एंड एयर। पृथ्वी हमारे तीन चीज़ों से मिलकर के बना है: लैंड, वाटर एंड एयर। एयर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हवा बहुत ही जरूरी है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। हवा बहुत से गैसों का मिक्सचर है। ऑक्सीजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स not survive on the earth. The next, our topic is shape of the earth. The earth shape. What is the earth shape? Rectangular? No, it is not a rectangle. Our earth is round like an orange. However, it is not a perfect shape. It is spherical in shape. It is a little flat at the top and bottom. And the ancient times, the people used to believe that the earth was flat. Malvin's journey traveled to prove that the earth was flat. Later, the astronauts starts to go in space and confirm that the earth is round. हमारा अर्थ का शेप रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि एक संतरे के समान होता है। जिस तरह से संतरा या नारंगी, जिस तरह से उसके ऊपर और नीचे का भाग धंसा हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी का भी ऊपर और नीचे का भाग धंसा हुआ है और वो गोलाकार होता है। पुराने समय में लोगों की ऐसी अवधारणा थी कि हमारा पृथ्वी समतल है, लेकिन समय बीतते गया और मेल्विन नाम के एक व्यक्ति ने अपने जर्नी से प्रूव किया कि पृथ्वी समतल नहीं बल्कि गोलाकार है। और इस विचार को सत्यापन तब मिला जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाना शुरू किए और उन्होंने स्पेस से, अंतरिक्ष से देखा कि पृथ्वी वाकई में एक गोलाकार है। The next topic is tools to study the earth. The first, globe. A globe is a model of earth. It's rotate on axis. So what is the axis? The axis is an imaginary line which passes through the center of earth. It has two axis points. The top of north and bottom is south poles. Earth move from west to east. Again, the earth move from west to east, not east to west. Earth complete a one rotation in 24 hours. Earth divided into a two hemisphere. The first northern and southern hemisphere, and second western and eastern hemisphere. These globes represent our earth. ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना होता है जिसपे दो एक्सिस होते हैं। और एक्सिस क्या है? तो एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो अर्थ के बीचों बीच होकर के गुजरता है। इसके दो एक्सिस पोल होते हैं। इसके टॉप ऊपरी भाग को हम नॉर्थ पोल और निचली भाग को हम साउथ पोल बोलते हैं। और हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। अर्थ को पूरे एक घूर्णन को कंप्लीट करने में 24 घंटे की समय लगती है। अर्थ को हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर और सेकंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यह ग्लोब हमारे पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब: दे कैन नॉट बी कैरीड फॉर ट्रैवलिंग। ग्लोब्स डू नॉट show the entire earth at a time. ग्लोब में कुछ खामियां हैं जिसे हम
कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं और ग्लोब पे एक बार में हम पूरे अर्थ को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैप। मैप इज अ डिजाइन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर। Unlike a globe, we can see the entire earth with all the lands and water bodies at one glance on a map. A map help us to study different landforms and water bodies on the earth's surface more closely. A map are represent using special symbols. For example, the state capitals show the dot and airports show the blue dot, railway stations show the green dot and roadway show the black dot. Suppose I live in Bettiah. Tomorrow I will going to Patna, but I have not idea what is the distance between Bettiah to Patna. So I am check the distance on map. The Bettiah to Patna distance 5 centimeters. The 1 centimeters equator represent the 50 kilometers. So since Bettiah to Patna 5 centimeter distance. Since the 1 centimeter is equal to 50 kilometers, so 5 into 50 is equal to 250 kilometers is the actually distance. We can fold and roll on map and carry it easy. There are a very large map called wall map. We hang on this map on wall. This is a special book of map called Atlas map. मानचित्र को हम किसी समतल या पेपर पे हम एक आलेख खींच करके दर्शाते हैं। इस मैप पे मानचित्र पे हम एक बार में पूरी पृथ्वी को दर्शा सकते हैं, जिसमें वहाँ के लैंडफॉर्म्स एंड ओशियंस होते हैं और जिसे हम एक बार में स्टडी भी कर सकते हैं। हर एक मानचित्र एक स्पेशल सिंबल्स को, साइंस को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी पार्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि एक स्टेट, जैसे एक बिहार का मैप है, उसमें हम स्टेट कैपिटल को एक डॉट से शो करते हैं, यानी हमारा स्टेट कैपिटल क्या हो गया, पटना। तो हम पटना को एक डॉट से शो करते हैं, प्लेटफॉर्म को हम ग्रीन डॉट से शो करते हैं, रोडवे को हम ब्लैक डॉट से शो करते हैं, एयरपोर्ट को हम ब्लू डॉट से शो करते हैं। और इक्वेटर 1 सेंटीमीटर इक्वेटर जो होता है वो 50 किलोमीटर, या हम उसको मान सकते हैं कि 25 किलोमीटर को या 100 किलोमीटर को भी शो करता है। तो अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि बेतिया से पटना का डिस्टेंस कितना है, तो हम मैप पे चेक करते हैं। तो बेतिया से अगर पटना की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या शो करता है, तो 50 किलोमीटर शो करता है। तो हम उसे नाप लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिस्टेंस आता है वो हमारा बेतिया टू पटना का रियल डिस्टेंस होता है। मैप जो होता है उसे हम इजीली फोल्ड या रोल करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। बहुत बड़े मैप को हम वॉल मैप के नाम से जानते हैं। इसे हम एक दीवार पे लगा करके रखते हैं और बुकों के जो संग्रह होता है जिसमें मानचित्र होते हैं, उस बुक को हम एटलस के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लुकिंग एट द अर्थ। When the astronauts travel to space and look at the Earth from there, they saw the big blue balls with a green and brown spots. The lands appear in green and brown, while the water is blue. The larger area of the land are continents and water bodies are ocean. Look at the earth. जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए तो उन्होंने वहां से देखा
ही हमारा अर्थ एक बड़े से ब्लू कलर के बॉल के साथ है और इसमें साथ में ग्रीन और ब्राउन कलर के भी रंग कलर दिखाई देते हैं। जो ग्रीन और ब्राउन कलर के रंग जो है वो हमारे अर्थ को, वो हमारे नेचर्स को और लैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर जो है वो हमारे वाटर बॉडीज को शो करता है। जैसे पृथ्वी पे बहुत से बड़े भूखंड को हम कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप के नाम से जानते हैं और वाटर बॉडीज को हम महासागर के नाम से जानते हैं। तो हम आज देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओशियंस। ओशियंस मीन्स महासागर। Oceans are a large bodies of water on the earth's surface. They have a salty water. The Pacific Oceans, Antarctic Oceans, Indian Ocean, Arctic Oceans and Antarctic Oceans are 5 oceans on the earth. The Pacific Oceans is the largest oceans in the world. Ocean यानी महासागर। महासागर क्या होते हैं? तो पृथ्वी पे जो वाटर बॉडीज के जो संग्रह हैं उसको हम महासागर के नाम से जानते हैं। इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 नाम, इसके अलग अलग नाम हैं। पहला है पैसिफिक ओशियंस, दूसरा है अंटार्कटिक ओशियंस, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्टिक ओशियंस एंड पांचवा है अंटार्कटिक ओशियंस। इन सभी ओशियंस में हमारे इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे बड़ा ओशियन हमारा पैसिफिक ओशियन है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट्स। द लैंड इन ईच कॉन्टिनेंट इज अवेलेबल इन अ डिफरेंट forms, land forms. The land forms Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia are 7 continents. Asia is the bigger and Australia is a smaller continents in the world. Continents महाद्वीप। पृथ्वी के भूखंड को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलग अलग भूखंड हैं। पहला आता है हमारा एशिया, दूसरा हमारा आता है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सभी में सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इस पूरे विश्व में। Thank you and have a nice day.